Hello 9th standard students, take out your art book. Today is your drawing lecture. Take out your art book. Page number 49, drawing elements. ड्राइंग के जो तत्व होते हैं वो आर्ट इंटरप्रिटेशन यानी कि आर्ट के क्या क्या अवयव है वो. कलर इज़ द मिरर ऑफ योर लाइफस्टाइल. कलर ये हमारा लाइफस्टाइल का आईना है. आर्ट इज़ द यूनिक पार्ट ऑफ द कल्चर. Human culture in early days was related to religion. Art was also influenced by the religion. Art and culture is an integral part of human life. The word art is derived from a Sanskrit word welfare. कला यानी कि कला जो शब्द है उसकी बात कर रहे हैं. The original English word art is derived from Latin word ars, ars. ये आर्ट इंग्लिश में जो आर्ट है वो वर्ड लैटिन वर्ड से आया है आर्स. इट मीन्स टू ऑब्टेन, बिकम एजुकेटेड और टू वैनिश. शिक्षित होना या गायब हो जाना, पाना को. Art, sculpture, music and literature is considered as subject of fine arts. Art and craft is also known as beautiful picture art. You can calculate the beautiful picture with your eyes. The goal of art is to awake the root of human heart, which simulates, animates and expresses elements of nature. Art and beauty are correlated in spite of being different. The main purpose of art by beautiful construction makes us supernatural and emotionally happy. It delights our heart while painting. God has created vision about art in the universe, about unique picture elements in the creation of art. Kids have lots of pleasure while doing art. Some kids can't speak, but when broken color is given, they can express themselves by drawing straight, slant, slipping lines, by drawing circles which glitters different shapes of art. All these shapes are drawn on their own. बच्चे अगर बोलते ठीक से बोलते नहीं पाते, ऐसा भी तो देखा होगा. चौक कलर का टुकड़ा भी मिल जाए तो कैसे भी लिखते पारेंगे, सर्कल करेंगे देखकर और वही खुश होंगे. By doing their own creation of drawing, they are too happy. The main purpose for giving kids art education is to increase their creativity, observation and visualization. इससे आपकी मतलब क्रिएट करना कुछ नया, आपका गौर फरमाने का अंदाज वो इंक्रीज होता है. दे आर फ्री टू थिंक इन देयर ओन वे एंड एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स थ्रू आर्ट बाय थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी प्रोसेस एंड कैन मेक एंड लर्न ब्यूटीफुल पिक्चर्स. दे ऑल्सो गेट मेंटल सेटिस्फैक्शन बाय डूइंग दिस. उन्हें करने पे बड़ा मानसिक संतुष्टि होती है. In today's modern mechanical life, child art education, it gives a freedom to do art in their own way. They learn an important lesson by thinking process. They understand in their own about the likes and dislikes. To give a good knowledge of beautiful and creative art, colors, shapes and point. To beautify your drawing, it is very important to color what is being drawn. हम ड्रॉ करने के बाद कलर करते हैं तो तभी वो उसमें जान डालती है कहाँ भाई. नंबर 1, line. In study of art, line is very exclusive. Drawing a line is very important for an artist to draw pictures. It is very important to know the properties and features of a line. For an artist, line is very important to express their feelings.
लाइन के ज़रिए को अब हम आर्टिस्ट भी अपना फीलिंग्स उजागर कर पाते हैं। लाइन इज formed by joining lines. Different shapes are formed with the help of line, and with the help of these shapes different drawings can be prepared. It is one dimensional and can vary in which direction and length. There are different types of lines which give different meanings. Now number one, vertical line. Vertical line, खड़ी लाइन, बिल्कुल सीधी खड़ी, जरा भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं। वर्टिकल लाइन डिस्प्लेज persistence and stability. It displays calm, cool and humor. If in a picture more of vertical lines are used, then you can see motion. Vertical lines जो है वो एक शांति, स्टेबिलिटी, काम यानी शांति, स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता, ठंडा ऐसा दर्शाता है। और ज़्यादा लाइन हो तो ज़्यादा वर्टिकल लाइन हो तो वो एक मतलब थोड़ा मोशन बताता है। जैसे कि हम कार ड्रॉ करेंगे और पीछे से जो अगर वो पेट्रोल या डीजल से चलता है तो पीछे से मतलब उसका धुआं निकलता है, वो तो थोड़ा वर्टिकल लाइन भी थोड़े थोड़े बना डालते, छोटे थोड़े बड़े तो तब ये मोशन का पता चलता है, मोशन गति। तो वर्टिकल लाइन के एग्जाम्पल्स है टेलीफोन, थंडर यानी कि बिजली, पिलर, टॉल टावर, स्टैंडिंग सोल्जर, टॉल ट्रीज, मल्टी लेवल बिल्डिंग्स, बड़ी बिल्डिंग है तो वो भी। ना नंबर 2, हॉरिजॉन्टल लाइन। स्लीपिंग लाइन डिस्प्लेज काम एंड कूल ह्यूमर। ये हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब कि स्लीपिंग लाइन, वो उससे हमें बिल्कुल शांति और ठंडा युद्ध पता चलता है। हॉरिजॉन्टल लाइन्स सजेस्ट अ फीलिंग ऑफ रेस्ट और रिपोज बिकॉज ऑब्जेक्ट्स पैरेलल टू द अर्थ आर द रेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन्स also give a sense of space. Example, sleeping man और animal, सोता हुआ इंसान, वो सब ये अभी उसके एग्जाम्पल आए। हॉरिजॉन्टल लाइन से पता चलता है कि बिल्कुल शांत है, बिल्कुल एक्टिविटी नहीं है, बिल्कुल निष्क्रिय है। तो उसके एग्जाम्पल है सोया हुआ इंसान या जानवर, a thing lying on the floor, tree fallen on the floor, on the road, horizon, seated, horizon मतलब seated। हम दरिया किनारे अगर खड़े रहेंगे तो ये समंदर और आसमान यूँ लगता है कि भाई वो दुनिया वहाँ पे ख़त्म हो गया, आसमान और समंदर वहीं पे मिले, मगर नहीं, आगे और भी दुनिया है, हमारी दुनिया गोल है। तो जो क्षितिज से हॉरिजन या हॉराइजन कहते हैं, उस पे से ये लाइन का नाम हॉरिजॉन्टल लाइन। स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन्स कन्वे द फीलिंग ऑफ मूवमेंट। ये मूवमेंट दर्शाता। स्लैंटिंग मतलब ना स्लिपिंग लाइन ना ही बिल्कुल वर्टिकल, थोड़ा सा आड़ा। स्लैंटिंग लाइन मतलब आड़ी लाइन। ऑब्जेक्ट्स इन अ diagonal position are unstable because they are neither horizontal nor vertical. They are already about to fall or in motion. Example, running child, running deer, flying bird. अगर हम दौड़ते हैं तो थोड़ा झुके हुए थे, ना कि सीधा दौड़ते, हम बिल्कुल स्ट्रेट नहीं दौड़ पाते। रनिंग डियर का भी पाँव थोड़ा, अब पाँव और बॉडी थोड़ा अलग ये में डायरेक्शन में रहता है। फ्लाइंग बर्ड भी उसके एग्जाम्पल में आएंगे। नाउ वेव लाइन। नंबर 4, वेव लाइन। द लाइन विच इज सीन इन द रिवर इज नोन एज वेव लाइन।
पानी की लहरें हम बताना चाहते हैं तो हम वेविंग लाइन्स लहरें मतलब लहर वाली लाइन बनाते हैं। यू वेव लाइन्स एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ मोशन, रिदम, मेलोनेस एंड सॉफ्टनेस। ये मोशन बताता है, एक रिदम, ताल, मेलोनेस एंड सॉफ्टनेस मधुर, मीठापन और नरमी। एग्जाम्पल, स्नेक मूविंग इन द ग्राउंड। स्नेक जब सरकता है ग्राउंड पे, ज़मीन पर, तब थोड़ा यूँ रेंगता है, तब वो यूँ आगे बढ़ता है ना। वेव सीन इन द रिवर एंड सी, पानी की लहरें नदी हो या समंदर के, वो भी वेविंग लाइन्स से हम बताते हैं। क्रिस क्रॉस लाइन, दिस लाइन कन्वेज फीलिंग ऑफ डिसऑर्डर एंड कन्फ्यूजन। एग्जाम्पल, अर्थक्वेक यानी कि धरतीकंप जो बोलते हैं, एक्सीडेंट सीन एंड डेब्रिस। डेब्रिस का मतलब मलबा, टूटा कोई बिल्डिंग या कुछ गिर गया तो उसका जो ढांचे का जो मलबा हो जाता है बाद में, वो डेब्रिस। ये कुछ नियम के बाहर, डिसऑर्डर, कन्फ्यूजन यानी कि कुछ उलझन सा मतलब। क्रिस क्रॉस लाइन तब ड्रॉ करते हैं जब हम कुछ अनिश्चितता या नियम के बाहर बताने के लिए कुछ ड्रॉ किया होता है तब, जैसे कि अर्थक्वेक, एक्सीडेंट सीन, डेब्रिस। ना ब्रोकन लाइन, ब्रोकन लाइन टेल्स अस अबाउट मोशन। ब्रोकन लाइन हमें मोशन बताता है, गति। इट गिव्स अ फीलिंग अबाउट डेंजर, शिवरिंग, इनसिक्योरिटी। कुछ डर या कुछ इनसिक्योरिटी, असुरक्षा होता है, ये बताने के लिए हम ब्रोकन लाइन यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, दिस लाइन इज यूज्ड इन रेन, फ्लाइंग एरोप्लेन, मूविंग कार एंड वाटर सीन इन अ ट्रांसपेरेंट वेसल। ब्रोकन लाइन, ग्लास में पानी भर के रखा होगा, तब हम वो पानी बताने के लिए ब्रोकन लाइन यूज़ करते हैं। उड़ता हुआ एरोप्लेन, उड़ता हुआ हवाई जहाज़, तब पीछे हम थोड़ा ब्रोकन लाइन यूज़ करते हैं। कार भी मोशन में है, वो बताने के लिए पीछे हम ब्रोकन लाइन्स डाल देते हैं। और रेन के बारिश की छींटें बताने के लिए तो हमें यूज़ करती है ब्रोकन लाइन, यानी थोड़ा थोड़ा डॉट 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 इस तरह से उन लाइन को ब्रोकन लाइन्स कहते हैं। ना थिन लाइन, थिन लाइन डिस्प्लेस फोर्स, स्ट्रेंथ, लिमिट, आउटस्कर्ट्स ऑफ मैप। एग्जाम्पल, थिन लाइन इज यूज टू डिस्प्ले द स्ट्रेंथ ऑफ द बर्ड। ये हम मैप में देखेंगे तो थिन लाइन देखना, स्टेट के बीच में थिन लाइन यूज़ होता है, बराबर। यानी वो बताता है एक मजबूती कि गुजरात ही है, ये महाराष्ट्र ही है, हाँ, और वो सीमा है, लिमिट है। थिक लाइन, थिक लाइन डिस्प्लेस द फीलिंग ऑफ लेजीनेस एंड ओबेसिटी। ये लेजीनेस यानी कि आलसीपना, ओबेसिटी यानी कि स्थूलता। दिस लाइन इज सीन in obese human being and density of an object। कोई चीज़ का पड़े रहना बेकार, या फिर कोई मोटा सा इंसान इतना मोटा, तब ये हम थिक लाइन यूज़ करते हैं बताने के लिए ड्राइंग में। नंबर 2, फॉर्म्स। फॉर्म्स आर क्रिएटेड बाय यूजिंग लाइन्स। एन आर्टिस्ट गिव्स अ ब्यूटीफुल फॉर्म टू दिस आइडियाज बाय क्रिएटिंग different shapes. In sculpture, importance is given to creating forms. There are two types of forms. दो तरह के forms होते हैं, वो हमें पता है 2D और 3D के बारे में हम बच्चे तो अच्छी तरह से बताएं। तो those shapes which have only 2 dimensions
namely length or breadth or width are called two-dimensional, means 2D forms. Example, a painting, a photo frame, a photograph. 2D में ये सारे एग्जाम्पल है, पेंटिंग, फोटो फ्रेम, फोटोग्राफ। इसकी लंबाई चौड़ाई होती है, लेकिन इसका ये जो घुमाव है सीधी भाषा में वो नहीं है, तो वो 2D फॉर्म्स। 3-dimensional means 3D photo frame forms. Those shapes which have thickness or depth in addition to length and width are called 3-dimensional 3D forms. For example, sculpture, architectural work, house, टेम्पल एक्सेट्रा। जैसे कि सचमुच का घर, ड्राइंग किया हुआ नहीं, सचमुच का घर या फिर मिट्टी का बनाया हुआ घर, टेम्पल, कोई आर्किटेक्चरल वर्क, स्कल्पचर, मूर्ति वगैरह, ये सब 3D फॉर्म्स हुए। नाउ कलर, द वर्ल्ड अराउंड अस इज फुल ऑफ वेरियस कलर्स। इट डज द वर्क ऑफ गिविंग life to your drawing. The drawing looks beautiful after applying colors. It has lots of strength to make humans happy with colors. With color, we come to know whether the thing is or lifeless, human is weak or strong, whether the human being old or young. We show the healthy child with pink color and the weak child with yellow color. कोई कमज़ोर सा बच्चा होगा तो बोलते हैं ना ऐसे, कैसे पीला पड़ गया है, सुखा गया है इसका मतलब। और ताज़ा माजा गोल मटोल होगा कोई बच्चा तो बोले कैसा गुलाबी बच्चा है, बोलते हैं ना। तो कलर से किसी ड्राइंग में जान डलती है, हमें ये आनंद भी मिलता है इससे। We show red color on marriage occasion to show the feeling of the nature. We apply green and blue color. हम कुछ कुदरत का नज़ारा बताने के लिए होता है जब, तो हम ग्रीनरी बताते हैं या फिर ब्लू कलर यूज़ करते हैं। और शादी वादी के मौके पर ज़्यादातर रेड कलर यूज़ होता है, पता है हमें। दुल्हन सजी हुई तो लाल जोड़े में सजी होती है वगैरह। The prompt to the harmony of colors in nature seems to have prompted to the use of colors for enchanting beauty. It is therefore essential to understand the fundamental principles of color harmony. With the help of glass, radiation of sun rays can be split, and white color can be split into 7 colors: purple, blue, green, yellow, orange, sky blue, maroon. With the help of these colors, an artist can make beautiful paintings. इन कलर्स के जरिए क्रिएट करते हैं आर्टिस्ट अपना पेंटिंग। In modern art samples, with the help of colors and looks, a form can be formed which is very significant. There are 3 series of colors: primary colors, secondary colors and tertiary colors. स्टैंडर्ड 9। हाँ, ये कलर्स के बारे में हमने अच्छी तरह से जान लिया है। फिर से थोड़ा सा भी लेसन में है, इसमें ये सारी बातें ऐसे हमें पता है। इससे पहले 3-4-5 साल पहले से ये तुम्हें बताते आ रहा, वही बातें हैं। फिर से कोई बात। प्राइमरी कलर्स, द इनरमोस्ट स्मॉल सर्कल ऑफ द कलर व्हील, 3 कलर्स रेड, येलो एंड ब्लू आते हैं। हमने व्हील कलर लास्ट ईयर भी बनाया था, उससे पहले भी बनाया था। जो सबसे अंदर का जो सर्कल है उसमें वो बेसिक यानी कि प्राइमरी कलर्स है। प्राइमरी कलर्स आर रेड, येलो एंड ब्लू. These are primary colors. These 3 are original and bright colors and cannot be prepared by mixing any other colors. ये बिल्कुल ब्राइट ओरिजिनल होता है और ये कभी भी दूसरे कलर्स के मिक्सिंग से नहीं बनते. ग्रे कलर इज प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग दिस 3 कलर्स. हाँ, तुम ये 3 कलर को बराबर इक्वल
सरखा सरखा मिक्स करोगे तो ये ग्रे कलर मिलेगा तुम्हें, रेड, येलो एंड ब्लू, तुम्हें ग्रे कलर मिलेगा। इन तीनों कलर को इक्वल ये में मिक्स करोगे तो ना। secondary colors are green, orange and purple and present in the second circle of the color wheel. इनरमोस्ट का सर्कल के बाहर थोड़ा बाहर जाओगे तो वो सेकेंडरी कलर्स हमने ड्रॉ भी किया है। ये था इनरमोस्ट सर्कल, ये रेड, ब्लू, येलो, लेकिन उसके बाहर जाते फिर ये कलर्स मिलेंगे आपको, सेकेंडरी कलर्स मिलेंगे। तो सेकेंडरी कलर्स आर हमें पता है, ऑरेंज, वायलेट एंड ग्रीन। येलो प्लस रेड, ये दो मिक्स करोगे तो ऑरेंज मिलेगा। रेड प्लस ब्लू तो वायलेट, ब्लू एंड येलो ग्रीन। सो ऑरेंज, वायलेट एंड ग्रीन आर सेकेंडरी कलर्स, क्योंकि ये कोई भी दो प्राइमरी कलर्स के मिक्सिंग से बने हैं। ऑरेंज, वायलेट और ग्रीन, येलो प्लस रेड ऑरेंज, रेड प्लस ब्लू वायलेट, ब्लू प्लस येलो ग्रीन। दे आर लेस प्योर एंड ब्राइट कंपेयर टू प्राइमरी कलर्स। वो उसकी चमक कम होती है, मतलब एक आभा होती है जो कलर की, और जो इसकी प्योरिटी है वो बेसिक यानी कि प्राइमरी कलर से कम है, क्योंकि वो दो प्राइमरी कलर से बने हैं, इसलिए वो सेकेंडरी कलर्स कहलाते हैं। वो कम प्योर है, थोड़ा सा कम प्योर है और कम ब्राइट है। नाउ tertiary colors, they are formed when two secondary colors are mixed together in equal proportion. The tertiary colors are olive green, brown and slate. tertiary colors, दो प्राइमरी कलर्स मिक्स करने से सेकेंडरी कलर्स हमें मिलता है। वैसे ही दो सेकेंडरी कलर्स इक्वल क्वांटिटी में लेने पर हमें tertiary कलर्स मिलेंगे। The tertiary colors are olive green, brown and slate. Olive green, brown और slate ये tertiary colors हैं। Orange plus green तो भाई olive green मिलेगा हमें। Orange plus purple तो brown कलर मिलता है। Purple और green मिक्स करने पर हमें slate यानी कि ash कलर मिलता है। These colors look dull, ये बहुत डल सा है, मतलब उसकी तेज कम लगता है, थोड़ा डल दिखता है ये कलर्स। द ब्राइटनेस एंड प्योरिटी इज़ वेरी लेस, ब्राइटनेस और उसकी प्योरिटी कम, बहुत ही कम होती है। इन दिस वे यू कैन हैव नॉलेज अबाउट द कलर स्कीम एंड कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट पेंटिंग। इस तरह से आपको ये पेंटिंग या ड्राइंग में सहायता मिलती है। प्रॉपर्टीज ऑफ कलर्स, इसके बारे में जानें। ह्यूमन माइंड्स आर ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कलर्स। ईच कलर एक्सप्रेसेस सर्टेन expressions. The result is that different colors are used as symbols according to Indian art. Colors have simple and direct relationship with Nauras. White, dull, tragic, jewelry, nasty, humor, अमेजिंग। नवरस से उत्पन्न होते हैं ये, वो नवरस के नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। Quite, dark, tragic, jewelry, nasty, humor, amazing, awesome and heroics are displayed or shown by using different colors. ये अलग अलग के रस हम इन कलर के ज़रिए बता सकते हैं। शांति हो, ज्वेलरी हो ना, कलर के बारे में जाने हम आगे। रेड कलर इज़ यूज्ड फॉर फेस्टिवल्स, ब्रिज एंड स्प्रिंग, त्योहार या स्प्रिंग होता है तब हम रेड कलर ज़्यादा यूज़ करते हैं। It is very important color in Indian religion. It indicates symbols. Red color symbolizes
and indicate anger, violence, danger, warning. रेड कलर डर, खौफ बताता है हमें. गुस्सा बताने के लिए भी रेड कलर यूज़ करते हैं. वार्निंग के लिए रेड कलर यूज़ करते हैं. दिस कलर इज मेनली यूज्ड इन मैरिजेस. शादी ब्याह के मौके पर ये कलर ज़्यादा यूज़ होता है. रेड कलर इंडिकेट्स लव, प्यार दर्शाता है ये कलर. दिस कलर इज लव्ड बाय चिल्ड्रन एंड लेडीज. रेड कलर जो है बच्चे और औरतें ज़्यादा पसंद करते हैं. उनका पसंदीदा कलर है रेड. बिल्कुल छोटे बच्चे को अगर तुम कई तरह के कलर की चीज़ बताओगे, लेकिन वो सीधा लाल कलर की चीज़ लाल कलर के खिलौने को ही पकड़ेगा. उन्हें बच्चों को और औरतों को ये कलर ज़्यादा पसंद है. येलो. From all the primary colors, this color is most bright color. जो प्राइमरी कलर है येलो, ब्लू एंड रेड, जिसमें सबसे ज़्यादा ब्राइट कलर है येलो. इट इज़ द सिंबल ऑफ सन. दिस कलर हैज़ बीन यूज्ड फॉर bonfire, light, fire, lust, purity, glory and softness. नरमी, उजाला, आग, प्योरिटी, ये सब बताने के लिए येलो कलर यूज़ होता है. दिस कलर कैन बी यूज फॉर वीकनेस और इलनेस. या कमज़ोरी या तबीयत का नासाज होना भी बताता है येलो कलर. दिस कलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पेंटिंग्स ऑफ हिंदू, बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियंस. बुद्धिस्ट और हिंदू धर्म में ये येलो कलर की अहमियत ज़्यादा है. ब्लू कलर इज ऑफ वास्टनेस, विशालता, अनंतता. जैसे कि आसमान ब्लू कलर का है, हमें इससे पता चलता है कि आसमान का कोई छोर नहीं है, कोई अंत नहीं है. सेंट गुरु नानक रिफर्स दिस कलर एज अ सिंबल ऑफ गॉड. गुरु नानक जो है संत है नहीं, वो थे, वो उन्होंने खुदा का प्रतीक माना था. द लिमिट ऑफ ब्लू कलर कैन नॉट बी कन्फर्म्ड. दिस कलर डिस्प्लेस स्काई's vastness and boundless eternity. Due to the vastness of sky, illusion of brown color is generated. Blue color displays eternity, seriousness and immensity. Green. The color green is the symbol of vitality, giving us the feeling of nature. This color is present in the last band of our Indian flag. It resembles feelings of happiness, freshness, prosperity, greenery, welcome and faith. ये हरियाली दर्शाता है ग्रीन कलर भी. और काम है, ये काम शांत है ये कलर. और फिर हरियाली दर्शाता है प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि, ताजगी, खुशहाली, वेलकम, फेथ वगैरह. ग्रीन garlands symbolizes welcome, whereas green flag symbolizes liberation. Green garden is a symbol of prosperity, whereas green wave is for happiness and freshness. Green color gives us the feeling of peace. शांति दर्शाता है. Orange color. The color of second series is a symbol of science and knowledge. ये विज्ञान और ज्ञान का प्रतीक है ये कलर ऑरेंज. समृद्धि, विज्ञान और ज्ञान का. It displays feeling of gallantry, devotion, sacrifice and martyrdom. ये कुर्बानी,
इबादत वगैरह, डिवोशन। इट कॉल्स, वो दर्शाता है, इट कॉल्स टू इन्फोर्स फुल एनर्जी टिल यू डाई in defense of the country. It's because of this we can see this color in the top band of our national flag. Lord Hanuman's sindoor, means orange color, is also a symbol of devotion and power. लॉर्ड हनुमान के मत्थे पर भी ये सिंदूर लगा हुआ होता है, वो ऑरेंज कलर का, सेक्रीफाइस का प्रतीक है। हमारे नेशनल फ्लैग में ग्रीन कलर और ऑरेंज कलर मिलता है। वही ग्रीन कलर हम हरियाली दर्शाता है, ऑरेंज कलर यानी सेक्रीफाइस, बलिदान होना दर्शाता है। Now white color, the color symbolizes peace. This color symbolizes peace. वाइट कलर शांति दर्शाता है। इट इज़ प्योर एंड होली, ये बिल्कुल प्योर होता है और एक होली, पाक। इट डिस्प्लेस फीलिंग्स ऑफ सिंपलिसिटी, पॉलिसी, क्लीनलीनेस, ऑथेंटिसिटी, ह्यूमैनिटी, ट्रूथ, काइंडनेस, उदारता, पॉलिसी, सादगी, स्वच्छता, ह्यूमैनिटी, पीटी एंड कैपिचुलेशन। White is color at its most complete and pure. The color of perfection. This color is present in the middle of Indian flag, which symbolizes peace and truth. तो नेशनल फ्लैग में बीच में जो पट्टा है बैंड में, वो वाइट कलर, तो हमें पता चलता है कि ये शांति और ट्रूथ, सच्चे होने का प्रतीक है। वायलेट कलर इज द कलर ऑफ पावर एंड प्राउड। वायलेट कलर से पावर का पता चलता है और प्राउड, एक दबदबा, अहंकार, पावर यानी कि हुकूमत रहना, वो। इट डिस्प्लेस फीलिंग ऑफ स्प्लेंडर, ह्यूमैनिटी, लग्जरियस, पीस, हैप्पीनेस, रिचनेस, पावरफुल एंड जेनरसिटी। दिस कलर इज अ मिक्सचर ऑफ जेंटल ब्लू एंड डार्क रेड। हमें पता है वायलेट कलर दो कलर के मिक्सिंग से बनते हैं, रेड एंड ब्लू। हम कोई राजा रानी का लिबास जब का कलर चुनने का होता है, तब सीधा ये वायलेट या पर्पल कलर यूज़ करते हैं मोस्टली, क्योंकि इससे पता चलता है ये उस शख्स का दबदबा, कितना पावर है वो, उससे पता चलता है, वायलेट या फिर पर्पल। ना नेक्स्ट इज ब्लैक कलर इज एसोसिएटेड विथ डेथ, फ्रॉड, फियर, मिस्ट्री, स्ट्रेंथ, एलिगेंस, फॉर्मेलिटी, डेथ, harassment, evil, aggression and authority. गर्म होना या फिर फ्रॉड होना, मौत, डर, मजबूती, या फिर भूतावल होना, इवल, ये सब दर्शाता है ब्लैक कलर। ब्लैक इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल कलर्स टू हैव डेप्थ एंड वेरिएशन ऑफ व्यू। ये हम जब को कलर करते हैं उसके बाद उसकी जो घनता बताना चाहते जब, या फिर उसकी दीर्घता बताना चाहते, डेंसिटी, तो हम ब्लैक कलर थोड़ा सा उसमें डाल देते हैं मामूली से, तो पता चलता है कि कितना गहरा है।
Black is required for all colors to have depth and variation of hue. Black color is the symbol of grief and protest. To protest, a piece of black cloth is waved. क्रिश्चियन समाज में जब कोई इंसान गुजर जाता है तो ब्लैक कलर का लिबास पहनते वो। कई क्रिश्चियन लोग मैंने देखा है गुजर जाने पर वो ब्लैक कलर के लिबास पहनते हैं, तो मतलब कि वो शौक मनाने का प्रतीक है ये कलर। ओके, तो यहाँ तक ड्राइंग चैप्टर 2 ड्राइंग एलिमेंट्स आर्ट है। ये पेज में 49, 50 और 51 का यहाँ तक आपको आपके थियोरी बुक सिंगल लाइन की बुक बनाई है आपने। ड्राइंग थियोरी बुक के नाम से सिंगल लाइन की एक 100 पेज वाली बुक बनानी है, लेसन्स आपको लिखना है। इसके ऊपर से आपको MCQs आएंगे एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने समझा दिया है, लेसन चलाया है, इसलिए ये सब है। तो ये भी आपको थियोरी बुक में लिखकर सेंड करना है। प्रैक्टिकल में मैंने जो दिया वो फिशरमैन ड्रॉ करना है आर्ट बुक में, और ये थियोरी बुक में लिख के मुझे सेंड करना है 4-5 दिन के अंदर। ओके, बाय चिल्ड्रन।